स्टूडेंट्स आज हम कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5 में 6 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5 7th क्वेश्चन। सो 7th क्वेश्चन में गिवन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। सो स्टूडेंट्स 7th क्वेश्चन में आपको गिवन है 3 पार्ट, सो 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट में आपको नंबर गिवन है 99 क्यूब। ओके, सो 99 होल क्यूब जो नंबर है आपको यहाँ पे से सॉल्व करना है, इसका फाइनल आंसर फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज व्हिच मींस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। सो 99 होल क्यूब को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? जैसे इसके प्रीवियस हमने स्क्वायर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सिमिलरली क्यूब के भी क्वेश्चंस वैसे ही सॉल्व करने। सो 99 होल क्यूब व्हिच मींस हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 100 - 1 होल क्यूब। ओके, 100 - 1 होल क्यूब। अब जब ये 100 - 1 होल क्यूब हो गया है, सो हम यहाँ पे आइडेंटिटी 7th अप्लाई कर सकते हैं विच इज x - y होल क्यूब, ओके, विच इज इक्वल टू x³ - y³ - 3x² y plus 3xy². Okay, so with the help of algebraic identity 7th, we find the value of 99 whole cube. Okay, so first one is x³ which means 100 cube. Okay, then minus 1 cube minus 3 100 square into 1 plus 3 into 100 into 1 square. Okay, simplify that. So 100 cube which means 10 lakh. So 10 lakh. Okay, minus 1 cube is 1, then minus 3 into 100 square. So 100 square is equal to 10,000. So 10,000 into 3 is equal to 30,000. Okay, then 3 into 100 and 1 का स्क्वायर तो 1, so plus 300. Okay, 10 lakh minus 1 minus 30,000 plus 300 is equal to 97,299. So students, this is the final answer or this is the cube of 99. Okay, so 99 whole cube is 97,299 and this is the final answer of first part. So students, अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आपको नंबर गिवन है 102 होल क्यूब। ओके, सो 102 होल क्यूब। अब 102 होल क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 plus 2 होल क्यूब which means यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे algebraic identity 6 which is x plus y whole cube. So algebraic identity 6 is x plus y whole cube which is equal to x³ plus y³ plus 3x square y plus 3xy². Okay, so with the help of algebraic identity 6 we find the answer of 102 whole cube. So first is x³ which means 100 cube plus y³ which means 2 cube plus 300 square into 2 plus 3 into 100 into 2 square. Okay, so simplify that. So 100 cube is 10 lakh. So 10 lakh plus 2 cube is 8. So 100 square is 10,000. So 10,000 into 3 is 30,000 into 2 is 60,000. So the answer is 60,000. Then plus 3 into 100 is 300 into 4 because 2 square is 4. So 3 into 4 is 1200. Okay, so 10 lakh plus 8 plus 60,000 plus 1200, 10 lakh 61,208. So students, this is the final answer of second part or 102 whole cube is equal to 10 lakh 61,208. So students, अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट में आपको नंबर गिवन है 998 whole cube. So the third part number is 998 whole cube. तो अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 1000 minus 2 whole cube. तो अब इसमें हम अप्लाई करेंगे algebraic identity 7th which is x minus y whole cube, x³ minus y³ minus 3x² y plus 3xy whole square. Okay, so with the help of 6th algebraic identity we find the answer of 998 whole cube. So first term is 1000. So 1000 cube minus 2 cube minus 3 into 1000 square into 2 plus 3 into 1000 into 2 square. Okay, so 1000 cube is which means यहाँ पे 9 zeros होंगे. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, so 9 zeros. Then 2 cube is 8 minus 1000 square is 10 lakh. So 10 lakh into 3 is 30 lakhs. 30 lakh into 2 is 60 lakh. So the answer is 60 lakh. Okay,
then plus 3 into 1000 which is equal to 3000, 3000 into 4 which is equal to 12,000. Okay, so this number minus 8 minus 60 lakh plus 12,000 is equal to 9940,119. So the final answer is 9,94 lakh 1,192. So students, this is the final answer of third part and the answer of 998 whole cube. So students, I hope आपको 7th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे 8 क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं 8 क्वेश्चन। सो 8 क्वेश्चन में गिवन है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, एंड आपको 8 क्वेश्चन में गिवन है 5 पार्ट्स। सो वन बाय वन सॉल्व करेंगे एंड फैक्टराइज करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है 8a³ + b³ + 12a² b + 6ab²। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे लिखेंगे सिंपल फॉर्म। सो 8a³ को हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इसे 2a³। ओके, b³ तो एज इट इज। देन अब आपको दिख रहा होगा कि 12a² b, देन द लास्ट टर्म है 6ab²। अब आपको ये कुछ इस टाइप की आइडेंटिटी दिख रही होगी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी 6 व्हिच इज x + y होल क्यूब x³ + y³ + 3x² y + 3xy²। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि x एंड y की जो टर्म है इसमें स्क्वायर है। यहाँ पे भी आपको फर्स्ट टर्म इज a, सेकेंड टर्म इज b। सो यहाँ पे एक बार स्क्वायर इसमें और एक बार इसमें है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी 6 है। सो विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटी 6 हम इसे फैक्टराइज करेंगे। a² b को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 into व्हिच मींस यहाँ पे x² है, तो यहाँ पे आपके पास x के लिए क्या टर्म है? 2a। सो 2a² into b। तो अब आपको दिख रहा होगा कि 2a² which means 4a², so 4a² into 3 is equal to 12a² b. Okay, and the last is 6ab² which means 3 into, अब फर्स्ट टर्म जो x वेरिएबल की वो क्या है? 2a, so 2a into b²। सब आपको दिख रहा होगा कि इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सो द आंसर विल बी 6ab²। सो अब इसे हमने सिंपल टर्म्स में तो लिख दिया। सो विद द हेल्प ऑफ x + y होल क्यूब की जो आइडेंटिटी 6 की हेल्प से हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे x and y which means 2a + b होल क्यूब। ओके, आइडेंटिटी 6 की हेल्प से जो आइडेंटिटी फॉर्म हुई है, जो ब्रैकेट फॉर्म हुआ है वो क्या है? 2a + b होल क्यूब। ओके, ये जो आपको एक्सपांड फॉर्म गिवन था उसी का यहाँ पे ब्रैकेट है 2a + b होल क्यूब। अब आपको फैक्टराइज करना है व्हिच मींस यहाँ पे आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सो द फैक्टर्स आर 2a + b and 2a + b। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज द फाइनल आंसर of first part. Okay, so the factors of this equation is 2a + b, 2a + b and 2a + b. So अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है 8a³ - b³ - 12a² b + 6ab²। ओके, अब आपको इसको देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी 7 अप्लाई हुई है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 8a³ - b³ - 12a² b एंड द लास्ट टर्म इज पॉजिटिव। और 7th अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है? x - y होल क्यूब x³ - y³ - 3x² y + 3xy²। ओके, यही होती है अलजेब्रिक आइडेंटिटी 7। तो आपको दिख रहा होगा कि जो आपको इक्वेशन गिवन है वो इसी फॉर्म में गिवन है। ओके, तो ये जो इक्वेशन गिवन है इसे हम लिखेंगे इन सिंपल फॉर्म जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। सो 8a³ को अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे 2a होल क्यूब, ओके, -b होल क्यूब -3 into 2a² b, ओके, +3 into 2a into b²। ओके, अब आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने आप इस इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा। ओके, सो x - y होल क्यूब के फॉर्म में लिखते हैं इस पूरी इक्वेशन को। द ब्रैकेट इज 2a - b होल क्यूब। ओके, अब यहाँ पे आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सो द फैक्टर्स आर 2a - b, second is 2a - b and the third one is also 2a - b. So students, this is the final answer of second part. Okay, second part में जो आपको इक्वेशन गिवन थी वहाँ पर हमने अप्लाई करी अलजेब्रिक आइडेंटिटी 7। उस अलजेब्रिक आइडेंटिटी 7 को अप्लाई करते ही हमें समझ में आया कि जो इक्वेशन है 7th अलजेब्रिक आइडेंटिटी से ही फॉर्म हुई है। ओके, सो यहाँ पर हमने सिंपल फॉर्म में लिखा, देन हमने यहाँ पे ब्रैकेट फॉर्म में लिखा 2a - b, देन उसके फैक्टर्स क्या होगा? 2a - b, 2a - b एंड 2a - b। सो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है 27 - 125a³ - 135a + 225a²। ओके, स्टूडेंट्स, इक्वेशन क्या है? 27 - 125a³ - 135a +
225a²। अब अगर ऐसे हम अरेंज करके लिखें तो अरेंज इक्वेशन क्या होगी, -125a³ देन प्लस 225a² माइनस 135a प्लस 27। तो जब हमने इक्वेशन को अरेंज कर लिया तो अब हम इसे सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। सो -125a³ को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं -5a³। ओके, एंड 225a²। अब आपको दिख रहा होगा कि एक a² टर्म है। ओके, यहाँ पे जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी 7th है इसमें भी जो -5a³ मतलब यहाँ पे जो y वाली टर्म होगी वो क्या होगी, -5a³। ओके, क्योंकि नेगेटिव साइन है। देन यहाँ पे 225a², 225a² विच मीन्स 3 इंटू -5a। तो स्टूडेंट्स ये क्या हुआ, 3 - 5। ओके, इसे हम ऐसे छोड़ देते हैं। सेकेंड इज -135a। अब -135a को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू -5a। ओके, अभी हम यहाँ पे स्क्वायर नहीं कर रहे। अब लास्ट टर्म इज प्लस 27 विच इज इक्वल टू 3³ ओके, अब 3³ अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा 3 इंटू -5a। अब 3 इंटू -5a करेंगे तो 15 होगा, बट जब हम -5a का स्क्वायर कर देंगे बिकॉज ये जो टर्म है वो कैसी है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे +3 -5a। ओके, सो +3 -5a² ओके एंड मल्टीप्लाई विथ 3। देन यहाँ पे क्या होगा, -5a, 3 इंटू -5a एक बार इसका स्क्वायर हो गया, देन मल्टीप्लाई विथ 3²। ओके, अब आपको दिख रहा होगा कि एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी 7, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि -5a³ विच मीन्स ये सेकंड टर्म है। तो आपके पास अलजेब्रिक आइडेंटिटी के हेल्प से ब्रैकेट क्या फॉर्म होगा, 3 - 5a³। अब आपको दिख रहा होगा कि इसी फॉर्म में ये आपको इक्वेशन गिवन है, इसलिए हमने इसे अरेंज किया। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट पावर थी उसे पहले लिखा, देन वहाँ पे हम डिक्रीज करते गए। सो यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा है 27 इज पॉजिटिव, सो फर्स्ट टर्म और x वेरिएबल इज 27। ओके, देन 5a जो है वो सेकंड टर्म है विच मीन्स -y³, सो -y³ तो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है -125a³। देन यहाँ पे आपको पता है कि जब y² होता है मतलब 3xy² तो वो पॉजिटिव टर्म होती है, तो ये पॉजिटिव ही है। देन -3x²y, तो यहाँ पे आपको पता है कि वो नेगेटिव होती है और यहाँ पे भी वो टर्म नेगेटिव है। तो with the help of algebraic identity 7th we form a bracket which is 3 - 5a³। So the factors are 3 - 5a, 3 - 5a and 3 - 5a। So students this is the final answer of third part। बहुत टाइम ऐसा भी होगा कि आपको इक्वेशंस ऐसे ही विदाउट अरेंज आपको दे दी जाएंगी जिससे आपको इजीली देख के समझ में नहीं आएगा। जैसे हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जो सॉल्व किया उसमें आपको क्लियरली दिख रहा था कि वहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी 6th एंड 7th अप्लाई होगी, बट यहाँ पे आपको अरेंज नहीं थी इक्वेशन। सो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोनेंट पावर डिक्रीज हो ऐसी इक्वेशन अरेंज करी, देन उसके बाद हमने उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, देन हमने इक्वेशन को देख के समझा कि यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी 7th अप्लाई होगी विच इज x - y²। So the factors are 3 - 5a, 3 - 5a and 3 - 5a। So students this is the final answer of third part। So students अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे रिमेनिंग पार्ट। स्टूडेंट्स आई होप आपको थर्ड पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है 64a³ -27b³ -144a²b + 108ab²। सो इससे पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। सो 64a³ विच मीन्स 4a²। ओके, इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि 4a³ इज इक्वल टू 64a³। देन -27b³ विच इज इक्वल टू 3b²। ओके, देन -144a²b। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी 7 यहाँ पे अप्लाई हो रही है विच इज x - y²। तो वहाँ पे जो थर्ड टर्म होती है वो क्या होती है, -3x²y 3। अब x की टर्म क्या है, 4a, सो 4a² इंटू 3b। ओके, अब आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि 4a² विच मीन्स 16 इंटू 9 इज इक्वल टू -144a²b। एंड द लास्ट टर्म इज 108ab² विच मीन्स यहाँ पे क्या होगी, लास्ट टर्म 7th आइडेंटिटी में क्या होती है 3a विच मीन्स 4a इंटू b² विच मीन्स 3b²। अब आपको देखिए समझ में आ रहा होगा कि 3b² मतलब 9b², सो 9b इंटू 12 इज इक्वल टू 108ab²। ओके, सो अब यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी 7th अप्लाई हो रही है विच इज x - y²। सो x - y² विच मीन्स यहाँ पे क्या होगा ब्रैकेट 4a - 3b²। ओके, सो द फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन आर 4a - 3b, 4a - 3b एंड 4a - 3b। सो स्टूडेंट्स फोर्थ जो पार्ट है जिसमें आपको इक्वेशन गिवन है वो इक्वेशन आपको अरेंज करनी थी। ओके, इसके प्रीवियस हमने थर्ड पार्ट सॉल्व किया तो उसमें आपको इक्वेशन अरेंज गिवन नहीं थी।
सो वहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, पहले हमने उसे अरेंज करा, देन हमने वहाँ पे उसके ब्रैकेट्स फाइंड आउट किए, व्हिच मींस फैक्टर्स फाइंड आउट किए ऑफ थर्ड पार्ट। सो फोर्थ पार्ट में आपको इक्वेशन अरेंज गिवन थी, सो उसे हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, देन हमने यहाँ पे उसे इक्वेशन ब्रैकेट फॉर्म में लिखा, देन उसके फैक्टर्स इज 4a - 3b। ओके, सो 4a - 3b की 3 ब्रैकेट्स। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं फिफ्थ पार्ट। ओके, सो फिफ्थ पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है 27pq - 1/216 minus 9/2p square plus 1/4p। तो स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है 27pq - 1/216 minus 9/2p square plus 1/4p। सो अब इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो 27pq को हम कैसे लिख सकते हैं, 3p होल क्यूब। ओके, माइनस 1/216 which is equal to 1/6 होल क्यूब। ओके, देन माइनस 9/2p स्क्वायर एंड प्लस 1/4p। अब आपको यहाँ पे देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी 7 अप्लाई हो रही है। सो अलजेब्रिक आइडेंटिटी 7 पे थर्ड टर्म क्या होती है, -3। ओके, -3 into x square which means 3p square and y which means 1/6। ओके, then last term is 3 into x। अब 3 into x which means 3p, then y square which means 1/6 whole square, 1/6 whole square। ओके, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, 1/4p। फ्रेंड्स, अब हमने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया, अब हम इसे लिखेंगे इन ब्रैकेट फॉर्म। सो अब यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ गया कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी 7th अप्लाई हो रही है। सो अलजेब्रिक आइडेंटिटी 7th का ब्रैकेट क्या होता है, x - y होल क्यूब। सो x इज 3p, so 3p minus 1/6 whole cube। Okay, so the factors are 3p minus 1/6, 3p minus 1/6 and 3p minus 1/6। So students, this is the final answer of fifth part। Okay, so 3p minus 1/6 are the factors of this given equation। So I hope आपको 8th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं 9th क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, 9th क्वेश्चन में गिवन है वेरीफाई, और आपको यहाँ पे गिवन है 2 पार्ट। सो 1 by 1 हम सॉल्व करेंगे। 9th क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है x³ + y³ इज इक्वल टू x + y x² - xy + y²। ओके, विच मीन्स यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि RHS इज इक्वल टू LHS। ओके, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे RHS एंड देन उसे हम इक्वल करेंगे विद LHS। सो RHS टर्म इज x + y and x² - xy + y²। ओके, यहाँ पे आपको दो ब्रैकेट्स के बने जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन। सो x into x² is equal to x³ minus x into xy which is equal to x² y, then x into y² which is equal to plus x y²। okay, then plus y into x² which is equal to x² y। okay, then y into minus xy which is equal to minus xy square। okay, then plus y into y² which is equal to y³। तो अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो x² y नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, सो कैंसिल, प्लस xy² एंड माइनस xy² कैंसिल। सो द रिमेनिंग टर्म्स आर x³ + y³ which is an LHS टर्म। ओके, सो यहाँ पे हमने कैसे सॉल्व किया, हमने यहाँ पे लिया था RHS टर्म। RHS टर्म को यहाँ पे जो आपको ब्रैकेट्स के बनते हैं उसे हमने मल्टीप्लाई किया, देन यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई किया। सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्म्स जो थी उन्हें कैंसिल आउट किया। सो द रिमेनिंग टर्म्स आर x³ + y³। ओके, सो स्टूडेंट्स हमने वेरीफाई कर दिया RHS is equal to LHS। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ 9th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे रिमेनिंग पार्ट्स। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आप नीचे साइड में गिवन है x³ - y³ and in RHS x - y first bracket and the second is x² + xy + y²। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट प्रीवियस सॉल्व किया था वैसे ही हम इसे सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपको टर्म गिवन है x³ - y³ एंड राइट हैंड साइड में आपको टर्म्स गिवन है x - y is the first bracket and the second is x² + xy + y²। ओके, सो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था वैसे ही हम इसे भी सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट RHS टर्म। ओके, सो RHS टर्म को हम सॉल्व करेंगे और उसे हम किसके इक्वल करेंगे, टू LHS टर्म। सो RHS टर्म है x - y x² + xy + y²। ओके, अगेन यहाँ पे भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऑफ दीस टू ब्रैकेट्स। सो फर्स्ट टर्म इज x into x² is equal to x³,
then x into xy which is equal to x squared y, then x into y square xy square, okay, then minus y into x square is equal to minus x square y, okay, then minus y into xy which is equal to minus xy square, then minus y into y square is equal to minus y cube, okay। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि प्लस एक्स स्क्वायर वाई एंड माइनस एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल आउट, प्लस एक्स वाई स्क्वायर एंड माइनस एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल, सो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आर द रिमेनिंग टर्म्स एंड दिस इज एन एलएचएस टर्म, ओके। सो यहाँ पे हमने कैसे सॉल्व किया, वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया था, यहाँ पे हमने सॉल्व किया आरएचएस टर्म को, हमने किसके इक्वल कर दिया, टू एलएचएस टर्म। सो द फाइनल आंसर इज आरएचएस इज इक्वल टू एलएचएस, ओके। सो स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ 9th क्वेश्चन सेकंड पार्ट। स्टूडेंट्स आई होप आपको 9th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5। सो स्टूडेंट्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।